Good morning, students. Yesterday we have started miscellaneous exercise of sequence in series, and we have done few questions. Let us move ahead and do some more questions today. This is the 16th question. If A 1 upon B plus 1 by C, B 1 upon C plus 1 by A, C into 1 by A plus 1 by B. These three terms, they are in AP. We have to prove that ABC, they are also in AP. This can be written after taking LCM as A into B plus C divided by BC, B C plus A divided by CA, C A plus B divided by AB. So these terms are in AP. Now the terms of an AP have the property that if some number is added to all the terms of the AP, then the resulting sequence is also an AP. So we will use this property and add 1 to each term. We get AB plus AC divided by BC plus 1. Similarly here and similarly in the next one. Now take the LCM here. We get AB plus AC plus BC divided by BC, and similarly second and third term. Now we observe that in all the terms the numerator is same. So we can divide it by the AB plus BC plus AC, and then we get 1 upon BC plus 1 upon CA plus 1 upon AB. They are in AP. But we want ABC to be in AP, so we can multiply every term of the sequence of the AP by some number, then the resulting sequence is also an AP, so we can multiply it by ABC, and then when you multiply it by ABC, from the first term BC will get cancelled and you are left with A. So we can, and from the second term B, and from the third term C. So we can say that ABC, they are in AP. Next, if A and B are the roots of this equation and CD are the roots of this equation, x square minus 12x plus q equal to 0, where ABCD they form a GP, prove that Q plus P ratio Q minus P equals 17 ratio 15. अब यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, और हमने 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है सभी ने कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं. हमें ये प्रूफ करना है Q प्लस पी रेशो Q माइनस पी, तो हम यहाँ पर उस चीज़ का यूज़ करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज़ करेंगे. पहले वी कैन राइट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लेते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b बाई ए, and the product of the roots is c by a, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant term. So a plus b will be equal to minus b by a, that is 3 by 1, minus of minus 3 by 1, that is 3. And product of the roots will be c by a, c यहाँ p है और a हमारा 1 है, so it is p by 1. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से के रूट सी डी हैं, तो c प्लस डी विल बी इक्वल टू 12 by 1 and CD equal to Q by 1, that is Q. Now suppose R is the common ratio of the GP ABCD, then B will be equal to AR, C is AR square and D AR cube. So A plus B equal 3. We have here we have written A plus B equal to 3. So we can write as A plus AR. B is AR. AR equal to 3. So from here A can be taken common and you get 1 plus R equal to 3. Similarly C plus D equal to 12 है हमारे पास, तो यहाँ पर C और D की वैल्यू रखेंगे, तो और वैल्यू रखने के बाद यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, देन वी गेट ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 12. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें हम फर्स्ट और थर्ड को, देन वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 4. नाउ
जो हमें निकालना है, प्रूव करना है, तो वहाँ पर Q और लेफ्ट हैंड साइड उसकी Q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी है, एंड P इज इक्वल टू ए बी, अभी हमने प्रूफ किया है, और Q यहाँ से सी डी के इक्वल है, तो P और Q की वैल्यू रखेंगे सी डी प्लस ए बी अपॉन सी डी माइनस ए बी। सी और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर आर न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर आर डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में ये आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है, और इसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आया था हमारे पास, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके ये रेशो निकल जाएगा। सो इट इज 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, दैट इज 17/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC they are in AP, BCD are in GP, and 1/C, 1/D, 1/E are in AP, prove that ACE are in GP। नाउ ABC AP में है, तो AP की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस पे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट। फ्रॉम हियर वी कैन गेट टू बी इक्वल ए प्लस सी। नाउ BCD दे आर इन GP, और GP के टर्म्स का रेशो कांस्टेंट होता है, सो वी गेट C अपॉन B इक्वल D बाई C, दैट इज C स्क्वायर इक्वल टू BD। And 1/C, 1/D, 1/E they are in AP, so 1/D minus 1/C equal 1/E minus 1/D। तो यहाँ से आप ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास आएगा 2/D इक्वल 1/E प्लस 1/C। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू गेट 2/D इक्वल C प्लस E बाई 2CE। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से D निकाल सकते हैं, तो D इक्वल टू 2CE डिवाइडेड बाई C प्लस E। अब हमें ये प्रूव करना है कि ACE दे आर इन GP। सो B और D, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ D को एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें इन इक्वेशंस में से। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ B एंड D फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इन सेकंड। फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये थी, यहाँ से B AC की टर्म्स में आ जाएगा, और थर्ड से D E और C की टर्म्स में है, तो इन सब वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, B और D की वैल्यू। देन वी गेट C स्क्वायर इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2C अपॉन C प्लस E, 2 गेट्स कैंसल्ड, एंड देन यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये C भी एक कैंसिल आउट हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास C स्क्वायर प्लस CE इक्वल AE प्लस CE। C gets cancelled, so from here we get C square equal to AE, or you can write C by A equal to E by C. It means A, C and E they are in GP, और यही हमें प्रूफ करना है। That's all for today. Thank you.